तिन्ना गुना विच हो के भी तिन्ना गुना तो अतीत है, तिन्ना कालां विच हो के भी वो काल अतीत है, तिन्ना अवस्थावां विच हो के भी वो सारियां अवस्थावां तो अतीत है। वो है एक ओंकार, वो सरगुण रूप है। गुरु सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम सतनाम। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णना साको, तू ठाकर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा वर्णना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र गोद में जुड़ बैठ के हरि जस गायन सरवन कर रही सरबत साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भागां वाले हो जो गुरु चरना में जुड़े हो, गुरु दी गोद का निघा आनंद मान रहे हो। आओ, जो आपने प्रेरणा दे के गुरु की प्यारियां संगतां ने असीस दे के जो एक बारी होर सुभाग बख्शिश किया है, मानजोग प्रबंधक वीरां गुरु करके वजीरां सेवादारां दे प्रेरणा सदका धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी, आपने कृपा की, बख्शिश की, तरस किया, जो इस भाग बख्शिश कीते कि यह जो लड़ी आरंभ की सी पिछले दिनी अगों इसनूं होर चलाया जाए। सो आओ, हुण तक 5 पौड़ियां दी विचार हो चुकी है। 6वीं पौड़ी तो विचार आरंभ करांगे। पहले पाठ करिए, फिर जैसी जैसी मेरे सतगुरु रहमत करेंगे, बख्शिश करेंगे। आप असीस देना जी। गुरु की बानी अगाध बोध है, साढ़े संसारी जीवां दा समर्थ नहीं,
जो इस दे ठीक ठीक अर्थ भाव अर्थ कर सकीए, समझ सकीए। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਭਾਵ-ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਆਓ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਫੇਰ ਗੁਰਦੇਵ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜੋਗੀ, ਜੋਗਪੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ, ਖਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੂੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਧੂੜ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾਂ। ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਤਰਸ, ਨਦਰ, ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਭੇਗਾ? ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸਥੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਆਸ਼ੇ ਆਪ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪ੍ਰਾਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰਜਨਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸਨ। ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਜੈਸਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਕ ਨਾਮ ਦੁਖ ਕੋ ਬਿਦਤ ਹੈ ਜਗਤ ਮਧ, ਜਿਹ ਨਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਸਦਾ ਸੁਖਲੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਨ ਜਾਤਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਇੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਸੀ, ਪੀਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਰ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮਹਾਕਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚਲੀ ਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ, ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਵਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਆਈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ। ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਸਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਪੂਜेंगे दो, नानक नाम शामिल है जो। नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। मैनू हाई कोर्ट पर पाकिस्तान हाई कोर्ट के एक जज मिले अमेरिका विच, तो कहन लगे तुसी ते नानक जी नू अपना बना लिया है, पर नानक जी तो साढ़े पीर सन। मैं कहा जी आप दे भी पीर सन, मेरे गुरु सन। वो तो साझा गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है। सो प्यारी साध संगत जो जनेऊ पाउण लगे ना, भगत हरदयाल जी के मन में उदों ही आया सी जदों जन्म होया पातशाह का कि किते मैनू इन्हां दे द्वारा उचारित अमृत वचन सुनने का सुभाग मिल जाए। तो अज जो समा आया, नानक जी ने बांह फड़ लई, भगत जी की करन लगे, जनेऊ पाउण लगे। कहंदे ने इहदा लाभ, कहते जी सच्ची दरगाह मान मिलेगा, धर्म में स्थापना होएगी। पातशाह कहने लगे अच्छा मतलब सच्ची दरगाह तक नाल जाएगा। गुरुदेव के प्रश्न बड़े खूबसूरत होंगे। कहते नाल जाएगा, भगत जी का सिर झुक गया, नाल तो नहीं जाएगा। कहने अच्छा दसो सारी जिंदगी ये चलेगा मेरे नाल, शरीर दे मैला हो जाएगा, टुट जाएगा, फिर की करोगे? कहने लगे होर पवा देंगे। आसा दी बारिश होने होने आपने बचन सरवन कीते, चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया, सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण दिया।
ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਵੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਸਜੀ ਨਾਲ, ਤੱਕ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਨ ਬੱਟੇ ਆਏ, ਕੋਹੇ ਬਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ, ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਧਾਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਨੇਊ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸਰੀਰ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜਨੇਊ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿੰਝ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਨਾ ਢੰਗ ਬੜਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚੇਜ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਢੰਗ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਰॉ ਕਾਟਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਦੋਂ ਚਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਸੂਤਰ ਕੱਤ ਕੇ ਧਾਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਗੇ ਐਡ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਓ ਭਗਤ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਰੱਖੋ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਐਮਪੈਥੀ। ਐਮਪੈਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? putting yourself in others' shoes and walking few steps and understanding and realizing where the shoe pinches। ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬੀਤ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਦਇਆ ਰੱਖ ਉੱਥੇ। ਦਇਆ ਧਰਮ का मूल है। भगत तुलसीदास जी कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म, दौल धर्म, दया का पूत। धर्म का जन्म दया तो होंदा है, संतोख थाप रखिया जिनसू। कंपैशन, रॉ काटन कंपैशन, दया दी धारण कर। ਉਹਦੇ 'ਚ संतोख दे सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है संतोख। प्यारी साध संगत, एक संतोख सानू प्राप्त हो जाए, अद्धी जंग जिती गई। प्यार नाल आखो सतनाम। संतोख दे दो पक्ष ने, ताई जोगियां नू गुरदेव ने दो मुंदरा करना ही। मुंदा संतोख, कन दो होंदे ने, शब्द संतोख एक शब्द है। दो पक्ष ने, एक जो मिलिया है उसका शुकराना, और जो नहीं मिलिया उसका शिकवा नहीं करना। प्यार नाल आखो सतनाम। और मेरा अज दे बच्चियां नू हमेशा हमेशा यही रिक्वेस्ट होंदी है, नैवर कंप्लेन टू योर पेरेंट्स वट यू हैव नॉट गॉट, वट यू हैव नॉट रिसीव्ड। उन्हां दा शुकराना करो, तुहानू कितना कुछ एफर्ट करके। क्योंकि हर माँ बाप का दिल होंदा है मैं बच्चे नू सारे सुख प्रोवाइड करा जो मैं अपने जीवन नहीं पा सकिया। हर माँ बाप अपना बचपन अपने बच्चियां जींदा है। यह संदेश अपने बच्चों तक लै जाना प्यारी साध संगत। संतोख बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मिलया है उसका शुकराना, और जो नहीं मिलया उसदे लई शिकवा नहीं करना, अरदास करनी। अरदास करनी बच्चों ने सिखाओ। फैमिली दैट प्रेज टुगैदर स्टेज टुगैदर। मैं बार बार कहना, इसलिए बच्चों लैके आओ,
प्रेरो बच्चों नूं आन इत्थे, जो इत्थे मिलेगा वो किते होर नहीं मिल सकता। बाहर दुनिया में बस भटकन ही भटकन है। वो अज पॉप म्यूजिक, अज ड्रग्स, अज लिकर, अज सब पार्टीज, ये सब भटकन है, क्योंकि अंदर दा शांति नहीं है। वो बाहरों शांति लभ रहा है। शांति इत्थे गुरु दी गोद, गुरु दे चरनां च मिलेगी। दया कपास संतोख सूत जत गंढी, नेक आचरण दियां गंढा मार ते सत दे वट दे। नेक आचरण, इंटैग्रिटी, करैक्टर, ये साडा कशहरा है ना, साडे जत दी निशानी है। जत दी निशानी, साडा मॉरल करैक्टर, दैट्स व्हाई वी वेयर कशहरा। पुछदे ने बाहर दे मुल्कां च, व्हाई यू वेयर दिस लॉन्ग शॉर्ट्स, बरमूडास कहंदे, दिस रिप्रेजेंट अवर करैक्टर। कड़ा सत दी निशानी है, कंगा साडे संतोख दी निशानी, केश साडे संतोख दी निशानी है। ये सारी उत्थों ही आई चीज़ां, जत सत संतोख ते दया, किरपान साड़ी दया दी निशानी है। कि विचकार गुरसिख खड़ा है। पुछया सी ना समर्थ रामदास स्वामी जी ने कि 6वें पातशाह नूं कि आप तो गुरु नानक की गादी पे हो, आप शस्त्र धारण किए हैं। गुरु नानक तो उदासी वस्त्र धारण, गुरु नानक ने तो संसार त्याग दिया था, आप संसारी हो गए। आपने शाही लिबास पहने हैं, घोड़े रखे हैं, शस्त्र रखे हैं, आप तो फकीर थे। उत्थे गुरुदेव ने जवाब दिता, बातन फकीरी ज़ाहर अमीरी, शस्त्र गरीब की रक्षा जरवान की भख्या। शस्त्र रखे ने गरीब गऊ की रक्षा लई और पापियां नूं दंड देने लई। फकीरी भगती, भाव फकीरी तो बाद भगती, भगती छुपा के रखन की गल है, दुनिया ढंडोरा देने की गल नहीं कि मैं इन्ने पाठ करना तो रोज़ नितनेम करना तो मैं इन्ना कीर्तन सुनना, इन्ना दान करना, इन्ना पुण्य करना। दे खाजे आख गवाइए आसा दी वार, गुरुदेव कह रहे ने दे के खा, पर जे बोल दिता तू वावा ले ली तो फिर गवा लिया सब कुछ। प्यार नाल आखो सतनाम। बहुत बरीक है गुरु नानक की दुनिया, बहुत बरीक जे, बड़ा बरीक मारा गया और सुखैन मारा गया। बरीक है पर सुखैन है, ईजी है, ईजी टू एडॉप्ट। उत्थे नाल ही गुरुदेव ने क्या, नानक जी ने, मेरे गुरुदेव ने माया त्यागी, संसार नहीं त्यागया, परिवार से गुरुदेव दा, गृहस्थी सन गुरुदेव। उत्थे समर्थ रामदास जी ने क्या, ये बात मन को भावती है। तो फिर जो शिवाजी, महाराष्ट्र के शिवाजी ने, जिन्हों के नाम से शिव सेना है, उन्होंने संन्यास की इच्छा जाहिर की समर्थ रामदास जी ने, मैनू संन्यास दे दियो। आपे सारी स्टोरी रिसर्च की, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, इंटरनेट भरिया पे है इस रिसर्च नाल, आप जाके विचारना। उत्थे समर्थ रामदास जी ने शिवाजी ने कहा, नहीं शिवा तू भी शस्त्र धारण कर, देश की रक्षा, समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र ज़रूरी है। प्यार नाल आखो सतनाम। इसलिए खालसा पंथ साजिया, देश धर्म गऊ गरीब की रक्षा ले। प्यार नाल आखो सतनाम। गुरुदेव ने क्या, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट। ये जनेऊ जी का, ये आत्मा का जनेऊ है जिहड़ा नाल जाएगा। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट, ए जनेऊ जियो का। हई ता पांदे घत, ना ए टुटे ना मल लगे, ना ए जले न जाए। धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति धन है। गुरु नानक उन्होंने नमस्कार करता है जिन्हें 4 गुण धारण किए ने। वही गल पाशा थे कह रहे हैं, तीर्थ नावा जे तिस पावा। बाहरी इशनान नाल गल नहीं बनेगी, गल तो अंदर का इशनान है। तीरथ तप दया दान, जे को पावे तिल का मान। सुनिया मनिया, पढ़ो प्यार नाल, सुनिया मनिया मन कीता भाव। अंतरगत तीरथ मल नाओ। अंदर दी अवस्था,
छिम छिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। शब्द दी विचार है तीरथ, तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। धन गुरु नानक साहब, धन गुरु ग्रंथ साहब बख्शिश कर दे। तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। शब्द दी विचार यह ज्ञान अंदर है दे, यह तीरथ जिदे अंदर का इशनान होंदा है। उदों फिर बरसदा अमृत, जदों गुरसिख अमृत वेले उठ के चौंकड़ा मार के वाह करदा ना, यह विचार करदा उसदे वडियाइयां दी। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, उत्थे फिर अमृत सोमा अंदर का इशनान होंदा है। जिथे पातशाह कहंदे ने छिम छिम बरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचार। तीरथ नावा जे तिस पावां, जे उन्होंने चंगा लगा तो तां तीर्थां जावां। जे ती सिर ठुपाई वेखां, पातशाह कहंदे जिन्नी सृष्टि मैं देखदा हाँ, इत्थे उसकी किरपा बिना कुछ मिलता नहीं है, उसकी रहमत बिना कुछ नहीं मिलता। बिन कर्मा के मिले लई, कर्म भाव उदी बख्शिश बिना कुछ नहीं मिलता। कर्म फल भी उदी बख्शिश नाल प्राप्त होता है। बिन कर्मा के मिले लई। हाँ एक गल है, पढ़ो प्यार नाल, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। कोई गुरु की एक शिक्षा, एक वचन गुरु का हृदय तार लै, तेरा जीवन पलट जाएगा। अंदर ही विराग दे, भगती दे, ज्ञान दे रतन जवाहर मानक प्रगट हो जाएंगे। जिमें समुंदर की गहराई विच गोता लाइए ना, बड़े पदार्थ रतन जवाहर मिलते हैं। इस तरह अपने अंदर जदों गुरु के शब्द की विचार करके अपने जीवन उस ढंग नाल चलाने का यतन करता है गुरसिख, अंदरों भगती ज्ञान विराग उत्पन्न होता है। प्यार नाल आखो सतनाम। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। जे एक गल गुरु की सिख हृदय तार ले, इन्ना महात्म है सुनन का। अगे चल के 4 पौड़ियाँ सुने दियां ने, आर्ट ऑफ लिसनिंग। गुरुदेव कहते हैं जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। हे मेरे गुरुदेव तू तो मैनू एक सोझी दे दे। की सोझी दे दे? पढ़ो प्यार नाल, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। सारी सृष्टि का दाता एको है, एको है भाई, एको है साहिब मेरा एको है। दाता करता आप तू, तुस देवै करे पुसा। वो दाता है, अपनी दात दा करता भी वो आप है। संसार दे के वापस मंगदा है। दाता वड्डा है, दे के तिल ना तमाए, वापस ही नहीं जे मंगदा। कहते ना पुराने साढ़े बुजुर्ग व्यापारी जगत कहते सन, मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहे ना किसी से। वो बड़ा दाता जे संसार देगा ना, बाणी कह रही है, जे को एक करे चंगियाई, मन चित बहुत बफावे। इते गुण इतियां चंगियाइयां, दे ना पछोतावे। वो पछतांदा ही नहीं, दिंदा चले जांदा, दिंदा दे लैंदे थक पावे। फिर उहदे कोलों मंगीए ना, जिहड़ा सारी सृष्टि नूं देण वाला सानूं भी देगा। प्यारी साध संगत, मेरे गुरुदेव कहते हैं, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वो ना मैनू विसरे, श्वास श्वास मैनू वो ना विसरे। अगे अगली पौड़ी गुरुदेव कृपा करते हैं, साढ़े आम संसार दियां कामनावां की ने? की कामनावां ने आम संसारी दियां? जिथे परिवार मंगता है संसारी, रोजगार मंगता है, उत्थे एक अंदर इच्छा होंदी लंबी उम्र की। दूजी प्रबल इच्छा होंदी है कि संसार च मेरी शोभा होवे, मेरी वाहवा होवे, लोग मैनू मनन, मेरी इज्जत जलाल होवे, मेरे कुनबे वाले, मेरे कम्यूनिटी वाले, मेरे परिवार वाले। छोटी छोटी कुर्सियां वास्ते देख दो कितनियां लड़ाइयां होंदियां। की मतलब होंदा है मेरा मान सन्मान हो, कितनियां लड़ाइयां होंदियां। कोई भी ले लो, जिथे भी कोई ओहदा है उत्थे लड़ाई नाल है। क्यों है?
कि इस अहुदे ते बैठ के मेरी वाह वाह होएगी, लोग मैनू पुछणगे, लोग मेरी इज्जत करनगे, लोग मैनू अगे पिछे होणगे। होंदे भी ने दुनिया पावर के पिछे चलती है। पावर किसी तरह की हो, शरीरक बल हो, बुद्धि बल हो, धन संपदा का बल हो। पर पातशाह कहते हैं यह एक लंबी उम्र की इच्छा है, एक मान सम्मान की इच्छा है। इत्थे फिर पौड़ी उचारी गुरुदेव ने, जे जुग चारे आर जा। यह गुरु नानक का घर है जो सब कुछ दे सकता है। साड़ी 100-200 साल की उम्र की गल नहीं कर रहे गुरुदेव, कहते जा तेरी 4 जुगां जिन्नी भी उम्र हो जाए, जे जुग चारे आर जा, 4 जुगां जिन्नी उम्र हो जाए, होर दसो नहीं होए, इस तो भी ज़्यादा हो जाए, 10 गुना हो जाए, गुरुदेव दे सकते हैं। प्रभ भावे बिन सांस ते राखे। ऐसिया मिसाल हैं प्यारी साध संगत। जाओ श्री दरबार साहब जाते ना अमृतसर, संतोख सर गुरुद्वारे साहब के दर्शन करो। संतोख सर सरोवर जो पुटिया गया ना, वो एक जोगी समाधि च बैठा निकलिया, वो नाम ते बनया है संतोख सर, संतोखा जोगी। तो उन्होंने जो गुरसिख हैरान होए, गुरु अर्जन देव पातशाह की शरण लैके आए। गुरुदेव ने कहा इनू इशनान कराओ, जल का छट्टा दिता, उन्होंने होश ही लिया। तो उन्होंने पूछया भाई इत्थे किवें? थले बैठा सी, जड़ हो गया सी। कहने लगा जी 7 युग का बैठा, अज कल युग होया, मैनू वरदान सी कि मेरी गति गुरु नानक के घर तो होएगी। प्यार नाल आखो सतनाम। 4 युगां जिन्नी उम्र हो गई ना। ऐसी मिसाल हैं संसार। पर पातशाह कहते तो इस तो भी 10 गुना दे देना, फिर क्यों हो जाएगा? हाउ डज इट मैटर्स? क्योंकि जिहड़ी साड़ी अवस्था है, मैं अगे भी जिक्र किया सी, करतूत पशु की मानस जात। काम तो साढ़े पशुओं वाले ने। पशु भी रोटी के मगर दौड़ते, अस भी रोटी के मगर दौड़ने। पशु भी अपने बच्चों की प्रतिपालना वास्ते इधर उधर इज्जत इकट्ठा करता, अस भी इकट्ठी करने। होर की करने? अस भी घर कोठियाँ बनाने। ठीक है, सानू संगमरमर ग्रेनाइट तो बड़े बड़े घर चंगे लगते हैं। पशु अपने साइज़ का, अपने मधुमक्खी देख लो, शायद ही लक्कां मक्खियाँ कट्ठियाँ ही घर ही जांदियां। तो 4 पुत्र नहीं कट्ठे रह सकते, 4 भरा नहीं कट्ठे रह सकते। की करोगे? वो लखां कट्ठियाँ रहिंदियां। पातशाह कहते जे जुग चारे आर जा, होर दसो नहीं होए, नवां खंडा में जानिए। एक शहर की गल नहीं कर रहे पातशाह, कहते जा तैनू सारी धरती के उत्ते सब तेरी वाह वाह करन, फिर की हो जाएगा? नवां खंडा में जानिए, नाल चले सब कोई, चंगा नाम रखाए के। तू नाम ही तेरी बड़ी वाह वाह होवे संसार ही, बड़ा तेरा नामना है भाई, बड़ा भला पुरुष है, बड़ा बद। पर गल ध्यान रखी, गुरुदेव कहते हैं चंगा नाम रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नदर न आवई तो बात ना पूछे। गुरुदेव ने बड़ी बरीकी नाल गल समझाई है अपनी। आसा दी बार बार मैं आसा दी बार जिक्र इस कर कि रोज़ तुसीं कीर्तन सुनते हो, अखां के पंक्ति आ रही है। कहते सतिया मन संतोख उपजे। सती समझते दानी पुरुष को कहते। कहते दानी पुरुष के मन में संतोख आए। संतोख आएगा तो कुछ देगा ना। जे पहले ही उन्होंने घाटे पे ना अपने, मेरे को होर चाहिए कहने ना से 99 का गेड़ है। 99 का की मतलब? मेरे को 99 लाख हो गया, करोड़ नहीं होया, एक रह गया बाकी। जिस को सैकड़े की गिनती हो कहता 99 हो गए, 100 पूरे नहीं होए। जो हज़ारों की गिनती 99,000 हो गए। जिसे को 99 करोड़ हो गया, वो कहना 100 करोड़ पूरा हो जाए। अज तो करोड़ ही छोटे हो गए प्यारी साध संगत। अज तो जो गल करता है 500-700 हज़ार करोड़ की गल करता है। हूँ तो देखा नहीं सुना नहीं। मालिक कृपा करे हर गुरसिख को बड़े बड़े फार्म हाउस हो, क्यों ना हो। शहनशाह के पुत्र मैं तो एक अपना अजीज वीर मियामी च है, वो गल बड़ी अच्छी लगी। कहना वीर जी अरदास करो। मैं कहा दस भाई। कहना हर सिख को एक घोड़ी तो एक हाथी होना चाहिए। मैं क्या अज कि युग है घोड़ी का तो हाथी का? कहना हाँ जी, साढ़े गुरुओं को सी ना वधिया वधिया घोड़े, सिखा को भी होने चाहिए। मैं दस केड़ा? कहते फरारी होनी चाहिए एक घोड़ी, तो रोज़ राइज होनी चाहिए हाथी। हर सिख को हो। मैं कहते बहुत वधिया गल। पर दात प्यारी नहीं होवे, दाता प्यारा होवे। दात प्यारी विसरिया दातारा, सब कुछ गवा लिया। पातशाह कहते सतिया मन संतोख उपजे। दानी पुरुष के मन में आया कि मैं दान पुण्य करा, देने के भी चार, दे दे मंगे सहसा गुना। पहले देंदा है, फिर अरदासा करांदा है। पातशाह मैं इत्थे दिता, मैनू होर वादा बख्शिश कर।
100 गुना दी आ सकता है। पातशाह कहते कोई हर्ज नहीं है, अपने बापू को मंग रहे हैं ना, मंग। बापू को मंगना साड़ा राइट है ना जी। केड़ा बच्चा अपने बाप को नहीं मंगता, तो बाप को मंगने शर्म भी की। साजनो तू मीत मेरा ग्रह तेरे सब कहे, मान मांगो तान मांगो तान लक्ष्मी सुत दे। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भू कैसी, नौ निध नाम निदान ग्रह तेरे, मन बांछे सो लैसी। पर पातशाह कहते एक गल ध्यान रखी, मांग तेरे हैं सतिया मन संतोख उपजे, देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुना। पर एक गलती कर जाता है, कहता मेरी शोभा होवे संसार विच, वाहवा लेना ही चाहता है, कीता सब खुई चला गया, देखा जे आग गवाई। आशा की बात, सतिया मन संतोख उपजे, देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुना, शोभ करे संसार। मेरी संसारी शोभा होवे, आस तो पहले रख ली, वाहवा वास्ते फिर जो तू दान पुण्य किया है वो तो संसारी वाहवा वास्ते किया। तू कोई तेरे मन में दया तो नहीं आई किसी प्रति, अपनी शोभा। मेरा ना होवे इत्थे मेरा ना लिखा दियो जी, इस हस्पताल के बाहर मेरा बोर्ड लगा दियो जी, इस कमरे उत्ते मेरा नाम लिख दियो जी। देना उहदी दात विचों। पातशाह कहते जे को होए बहे दातार, तिस देनहार जाने गवार। तू ते पातशाह बानी जिसे आसा दी बाई कहते ने, जे लोड़े चंगा आपना कर पुण्य हो नीच सदाइए। तू तो पुण्य कर्म करके इको गल को, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया भयो कबीर कबीर। तो वो कर रहा है सब उसे दा, दे वड्याई तो तेरी वड्याई वाहिगुरु, मेरे अंदर कोई गुण नहीं, ये तो तेरी बख्शिश होई, मैनू मेरी वाहवा हो रही है। गुरुदेव बख्शिश करते हैं। अगेन भगत तुलसीदास की पंक्ति सामने आ रही है, कहते तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की बन गए तुलसीदास। जिन्होंने जाने, जिन्होंने समझा, जिन्होंने विचारे है, वो फिर अपना आपा नहीं जतलाते। कर पुन्नो नीच सदाइए। गुरुदेव कह रहे हैं कीट चंगा ना रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई। जे तू ओदी बख्शिश का पात्र नहीं बनया, जे तेरे कर्मां ते ओदी प्रसन्नता नहीं है, तो फिर बख्शिश करते हैं जे तिस नदर ना आवई, तब बात ना पूछे के फिर वो सच्ची दरगाह तेरे किसी तरह बात भी नहीं पूछनी, तेरे बारे में जानन जोतन भी नहीं करना। कीटा अंदर कीट कर, कीड़ियां विचों कीड़ा तेनू थापिया जाएगा। कीड़ियां विचों कीड़ा, कीड़े कीड़ा होंदा जे प्यारी साध संगत। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे। दोषी दे उत्ते ओदे दोष 10-10 के मड़े जाएंगे। वो सच्ची दरगाह है। नानक निर्गुण गुण करे, उसदियां वड्याइयां कर, वो निर्गुण नूं भी गुण दे दिंदा है। साखी सब ने सुनी है, पंजोखड़ा साहब आपने दर्शन किए होंगे। बिल्कुल गूंगा बहरा अनपढ़ सी छज्जू चीवर, 8वें पातशाह ने सोटी रख के गीता दे श्लोक अर्थ करा देते। वो निर्गुण गुण दे सकता है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां ते जिन्हां बस ऑलरेडी बड़े गुण ने, उन्होंने होर गुण दे के भी निहाल निहाल करता है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे, तेहा कोई न सुझई। पातशाह कहते हैं ऐसा कोई सुझाई नहीं दे रहा, जे तिस गुण कोई करे, कोई होर दूजा तुहानू कोई गुण दे सके। गुणा का दाता भी वाहिगुरु आप है। तो गुण धारण करन दा इको ही ढंग है कि उहदे गुण गाओ। जिदे गुण गावांगे वो गुण तुहाडे आटोमैटिकली आने शुरू हो जाएंगे। प्यार नाल आखो सतनाम। बाणी दी मोहर है प्यारी साध संगत। तू निर्भय होना चाहना है ना, तैन डर लगता है ना, तू निर्भय नूं जपिया कर। मूल मंत्र का ही पाठ जाप करी चल। पढ़ो प्यार नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त
अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हुण तू निर्भव नूं जपिया पढ़ी चल, निर्भव निर्भव जपे सगल भव मिटे। बाणी कह रही, बाणी ते विश्वास रखिए ना। सानू दुनिया ते विश्वास है प्यारी साध संगत। मैं एक छोटी दुनियावी मिसाल थोड़े नाल शेयर कर रहा। बहुत पहले कथा एवं ध्यान आ गई मेरे। देखो जो असीं किसी ने बिजनेस डील कर रहे हैं, अजकल तो खैर ऑनलाइन ट्रांसफर है, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले समय बैंक ड्राफ्ट चलते सन या कैशियर चैक चलता सी, बैंकर चैक। अमेरिका इसनूं कैशियर चैक कहते हैं। की हुंदा सी, तुसीं अपना चैक कट के किसी ने दिता भी मैं तैनूं 10,000 का या 50,000 का, कोई अनजान व्यक्ति ने दिता, कहता नहीं जी मैंने तो कैश चाहिए, मैं चैक एक्सैप्ट नहीं करांगा। हुण तुसीं उहनूं कहंदे मैं बैंकर चैक दे रहा या बैंक का ड्राफ्ट दे रहा, वो कहता वेलकम, कोको कोला भी मंगाता है, समान भी देंदा है। की फर्क है? कागज़ हुई हुई है, बैंक का नाम लिखा हुआ है, जिथे तुसीं साइन करने से उत्थे बैंक मैनेजर ने साइन ने। तो मेरा एक सवाल है कि जो बैंक मैनेजर के साइना ते 1 रुपये का भी विश्वास है, करोड़ रुपये का भी विश्वास है, तो जिस दे अंग अंग ते मेरे गुरुदेव की मोहर है, उस पर विश्वास नहीं। निश्चय रखो सतगुर की बाणी, सत सत कर मानो गुर सिखो, हर करता मुखों आप कढ़ाए। जिन्हें सत करके जाने हैं वो सत स्वरूप हो गए प्यारी साध संगत। जिन्हें शंके कीते मिट गए। इत्थे ते बस मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है। आप गवाइए तां छुपाइए, अपना आपा सौंप दे, ए बुद्धि दियां चलाकियां सौंप दे, इत्थे मत्था टेक दे, बस उस दे गुण धारण कर। वो जपेगा, ज्यों ज्यों उन्होंने जपेगा, जिस रूप ही जपेगा वो गुण तेरे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। निर्वैर करेगा, तेरे अंदर निर्वैरता का महान गुण आ जाएगा। जो कबीर साहब दियाँ पंक्तियाँ पढ़ेगा, जहाँ खिमा ते आप, रब्बी गुण है फॉरगिवनेस, रब्बी गुण है, तेरे अंदर फॉरगिवनेस आ जाएगी। ये जो तेरा बिहेवियर है ना, जजमेंटल बिहेवियर, ये कमी है, वो कमी, वो इंज करता है, वो इंज करता है। किन्ना को वजन, किन्ने पाप असी रोज़ इकट्ठे करके जाने। कीर्तन सुनने आसा दीवार का पातशाह कहते ने, कन्नी सूतक कन पे लायतबारी खाए। लायतबारी की है? स्लैंडर अबाउट अदर्स। सुनना और करना दोनों गल रूपों में स्लैंडर इज ए महापाप। निंदा तो दुश्मन की भी चंगी नहीं, वैसे स्वाद लै लै के करने गुरुद्वारे तो बाहर निकल दी, सुनाओ वीर जी, सुनाओ भैन जी की हाल, सुनिया फलाने के घर लड़ाई हो गई सी, सुनिया फलाने का नुकसान हो गया, सुनिया फलाना इंज करता है, सुनिया फलाना वो करता। की हो रहा है? नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाए। हंसा वर्गा जीवन सी, जमा दे वाले हो गया, खाली एक अवगुण धारण किया। तो जे किते ए कबीर साहब की पंक्ति रट लेंदे, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ खिमा तह आप, तो खिमा साढ़े अंदर घर कर जाती, फॉरगिवनेस। फिर असी जो अरदास करते ना, करते हाँ अरदास, भाई साहब सानू लीड करते हैं, असी 2 हाथ जोड़ के नाल सम्मिलित होने, जिन्हां प्यारियां सचियारियां ने देख के अनडिठ कीता, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। ये देख के अनडिठ करना है फॉरगिवनेस। अपनी अरदास नाल आप ही कनैक्ट नहीं असे कर पा रहे प्यारी साहब। जो असी अरदास मंग रहे हैं, मंगा सानू पता ही नहीं असी मंगी जा रहे हैं। 2 बार अस रिपीट कर रहे हैं, फेथ एंड अल्टीमेट फेथ। जीसस कहते ने, इफ यू हैव फेथ एज बिग एज मस्टर्ड ग्रेन यू कैन मूव दी माउंटेन। तू पहाड़ नूं हिला सकना, तेन विश्वास है। इत्थे अरदास करने, बाहर जाके हाथ दिखाने, किसी वास्तु शास्त्र वाले नूं पुछने, किसी ज्योतिषी नूं पुछने, किसी न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट नूं पुछने, इस ते विश्वास करना। निर्भव जपे सगल भो मिटे, गुरुदेव बख्शिश करे हन, तेहा कोई ना सुझही, जे तिस गुण कोई करे। ऐसा कोई दुनिया छोर नहीं दिखाई दे रहा जिहड़ा तैनूं गुनाह दी दात दे देवे।
इसलिए उसे नहीं सिमरना है। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए। आज इतनी ही सेवा परवान करनी प्यारी साध संगत। बानी अगाध बोध है, बानी पढ़दे हाँ, बानी विचारदे हाँ, अनेकां अनेक भुलां हो जांदियां। आप संगत रूप हो, गुरु रूप हो, भुलां बख्श देनियां। सतगुर पातशाह रहमत करन, बानी दी सोझी, बानी दा ज्ञान, बानी दा प्रकाश पढ़दियां सुनदियां दे हिरदियां विच कर देन। बानी दे भाव पढ़दियां सुनदियां दे हिरदियां विच बसा देन। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ दिन सेवा लगी है, चलेगी। आप भी जुड़ो, होरां नूं भी प्रेरो। दो हाथ जोड़ के बेनती है, 1 2 4 जे बच्चे भी गुरु शरण च आ सकन, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो जे मेरे जिम्मे सेवा लाओगे तो मैं चल के भी उन्होंने ले आवाँगा। आप हुक्म कर देना, मैं जाके भी उन्होंने रिक्वेस्ट करके गुरुद्वारे ले आवाँगा। बुलाओ असीस रूपी फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।